بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ طلباء کے لیے خوشخبری ہے۔ پنجاب کے سکولز اور کالجز میں موسم سرما کی چھٹیوں میں اضافے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 9 جنوری تک سکولز اور کالجز میں موسم سرما کی چھٹیاں ہوں گی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پنجاب کابینہ نے سخت سردی اور دھند کے پیش نظر چھٹیوں میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے قبل 1 جنوری تک موسم سرما کی چھٹیوں کا اعلان کیا گیا تھا۔ تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے سجاد حسین سے۔ جی سجاد، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، موسم سرما کی چھٹیوں کے حوالے سے جو ہے وہ کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر محکمہ موسمیات کی جو رائے ہے اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ ہفتے تک جو ہے وہ شدید سردی جو ہے وہ بڑھنے کا امکان ہے، اور اس شدید سردی کے باعث جو ہے وہ سموگ کا بھی اس میں ساتھ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ دھند کا بھی بہت زیادہ امکان پایا جا رہا ہے۔ اس ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ موسم سرما کی چھٹیوں میں مزید اضافہ کیا جائے، اور محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اس ہدایت پر 9 جنوری تک جو ہے وہ چھٹیوں کا اعلان کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اور دوسری جانب محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کی جانب سے بھی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ بی ایس کے اسٹوڈنٹ اور یونیورسٹیاں جو ہیں وہ اس سے مستثنی ہوں گی، اور وہ اس حوالے سے جو ہے اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سجاد حسین، آپ تفصیل نگاہ کر رہے تھے۔ نئے سال کی آمد پر شہر کے 12 پوائنٹس پر فائر ورکس نہیں ہوگا۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی، ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی میں اجازت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 12 پوائنٹس پر آتش بازی کے لیے درخواستیں موصول ہوئیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران، بتائیے۔ جی بالکل، نئے سال کی آمد پر لاہور کے 12 پوائنٹس پر فائر ورکس نہیں ہوگا۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی منانے کے لیے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی میں اجازت نہ دینے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ لاہور کے 12 پوائنٹس پر آتش بازی کے لیے درخواستیں منظور ہوئی، جس میں سینٹرل پارک ہاؤسنگ اسکیم فیروزپور روڈ، کرک خیر کواہا پوائنٹ، پاپیو ٹھوکر ملتان روڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیک اوے گلبرگ 1، اسٹیک اوے خیابان امین پر بھی آتش بازی نہیں ہوگی۔ ان کی درخواستیں منظور ہوئی تھی جن پر اب اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح ریڈ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کا کہنا ہے کہ منال روپ ٹاپ البرٹی چوک، انڈیگو نورجہاں روڈ گلبرگ 3، لاہور موٹر وے سٹی، بحریہ ٹاؤن، جنما مال، نشاد ہوٹل، امپوریم جوہو ٹاؤن، اور اس کے ساتھ ساتھ الرحیم گارڈن، قائدم انٹرچینج، جی ٹی روڈ پر بھی آتش بازی کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس وجہ سے ایس گارڈن، گارڈن ٹاؤن پوائنٹ پر بھی آتش بازی فائر ورکس کی جو ہے درخواست موصول ہوئی، جس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، بالکل اجازت نہیں دی گئی۔ شہر کے 12 پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پہ یہ جو ہے درخواستیں ہوئی، جس میں محکمہ داخلہ پنجاب نے واضح ہدایت کی تھی کہ اس سال جو ہے نئے سال کی آمد پر کہیں بھی فائر ورکس نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سموگ کی وجہ سے بھی جو ہے فائر ورکس نہیں کیا جائے گا۔ نئے سال کی آمد پر اس سال جو ہے شہر لاہور میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر فائر ورکس کی اجازت کے لیے این او سی جاری نہیں کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی نے باقاعدہ طور پر جو اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے عمران، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ ٹھنڈی ہوا چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 14 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 65% ریکارڈ کیا گیا۔ نمائندہ لاہور نیوز محمد علی اس وقت آزادی پل پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی محمد علی، بتائیے۔ جی لاہور میں اس وقت جو سی ہے وہ جتنے بھی میدانی علاقے ہیں اطراف کے، جس میں رنگ روڈ اگر کہا جائے، سیالکوٹ موٹر وے، اسی طرح شیخ پورہ سائڈ، ان علاقوں میں میدانی علاقوں میں دھند شروع ہو چکی ہے۔ ویزیبلٹی جو سے ابھی تک 1 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے۔ اگر اوور آل بات کی جائے تو لاہور میں اس وقت درجہ 11 ڈگری ہے، کم از کم 6 ڈگری تک جائے گا، 5 سے 6 ڈگری کے درمیان رہے گا، محکمہ موسمیات کا ایسا کہنا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 65% ہے۔ ہوا جو سی وہ 1 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ سردی کی شدت میں، خشک سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے باعث یہ ہے کہ لاہور کا موسم سرد ہو چکا ہے۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹے تک لاہور سمیت گرد و نواح میں کہیں بارش نہیں ہے۔ پیر والے دن کہا جا رہا ہے کہ دھند ہوگی، اور منگل سے بدھ تک کہا جا رہا ہے کہ بادل بنیں گے، لیکن برسیں گے نہیں کس صورت میں، کیونکہ ویزیبلٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دھند جو سی وہ رات 12 بجے کے بعد متاثر کرتی ہے تمام موٹر ویز کو۔ لاہور سے اسلام آباد، اسی طرح لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے سب سے پہلے بند ہوتی ہے، اور لاہور سے شیخوپورہ، پنڈی بھٹیاں، فیصل آباد،
ये तमाम मोटरवेज हैं जो उनसे रात को बंद कर दी जाती हैं क्योंकि विजिबिलिटी इतनी पुअर हो जाती है कि ज़ीरो पे आ जाती है। अगर लाहौर समेत अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो रात 1 बजे के बाद कहा जा रहा है कि विजिबिलिटी जो सी है हद निगाह तकरीबन वो जो सी 100 से 50 मीटर होगी। सुबह तक ये मुतासर रहेगी और तकरीबन 9 से 10 के दरमियान जो सा विजिबिलिटी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वन डिश और औकात कार पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला का पंजाब भर के कमिश्नर्स, RPOs और DPOs को हिदायत जारी की गई हैं। आज रात शादी ब्याह की तकरीबात को खुसूसी तौर पर चेक किया जाएगा। वन डिश और औकात कार की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। आपको अपडेट किया जा रहा है, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वन डिश और औकात कार पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का पंजाब भर के कमिश्नर्स, RPOs और DPOs को हिदायत जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल। NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर ने जुमेरात के दिन फैसला महफूज किया था। NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर होने पर मिठाई तकसीम। पार्टी के सीनियर रहनुमा हाफिज गुलाम महिउद्दीन के घर पर जश्न का समा है। आपको अपडेट किया जा रहा है। अहम खबर के हवाले से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल हो चुका है। NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने जुमेरात के दिन फैसला महफूज किया था। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मोहम्मद यासीन से। मोहम्मद यासीन, आगाह कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, NA 127 से रिटर्निंग अफसर ने बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी का आज फैसला सुना दिया और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। और रिटर्निंग अफसर ने ये फैसला जुमेरात के रोज महफूज किया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा को मौक़िफ़ था कि बिलावल भुट्टो के कागजात तराज लगाने वाला जो है उसका NA 127 से वोटर ही नहीं है और वो एक नारोवाल का एक शख्स ये किस तरह तराज कर सकता है। जबकि तर्जमान बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल जुल्फ़िकार अली बदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी जो मंजूर हो गए हैं और रिटर्निंग अफसर ने इस पर आज जो फैसला सुना दिया है। और जबकि जो बिलावल भुट्टो जरदारी एक कागजात नामजदगी मंजूर होने पर लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई हैं और जश्न भी हुआ है। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हाफिज गुलाम महिउद्दीन के घर गुलबर्ग में जश्न भी मनाया गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कारकुनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। बिलावल भुट्टो जरदारी एक दराजी उम्र की दुआ भी की गई है। और तकरीब में अदील महिउद्दीन और आमर नसीर भट्ट और डॉक्टर रफीक अहमद समेत दीगर शरीक थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक चेयरमैन PTI के असासों की तफसीलात सामने आ गई। 5 बरस के दौरान 27 करोड़ 72,55,000 रुपये से जायद का इजाफा हुआ है। साबिक चेयरमैन PTI के असासों की कुल मालियत 31 करोड़ 59,50,000 हो गई है। तोशा खाना से खरीदी गई कीमती अशिया की कीमत 1 करोड़ 18,77,000 रुपये जाहिर की। साबिक चेयरमैन PTI ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए लाहौर के हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। 2018 में साबिक चेयरमैन PTI के असासों की मालियत 3 करोड़ 86,94,000 रुपए थी, जबकि 2023 में असासों की मालियत बढ़ाकर 31 करोड़ 59,50,000 रुपए से जायद जाहिर की गई। बानी PTI ने जमान पार्क लाहौर में 7 केनाल 8 मरले का घर वरासत में जाहिर किया है। जमान पार्क के घर की तामीर पर 4 करोड़ 86 लाख रुपए से जायद का खर्चा बताया गया है। कागजात नामजदगी में साबिक चेयरमैन PTI ने बनीगाला में 300 केनाल अराजी तोहफे में वसूल जाहिर की और इस घर की तजीनो आराइश और रेगुलराइजेशन की मद में 39 लाख रुपए से जायद का खर्च बताया है। इस्लामाबाद के इलाके मेहरा नूर में भी 50 लाख रुपए से जायद मालियत की 6 केनाल 16 मरले अराजी जाहिर की गई, जबकि इस्लामाबाद के शॉपिंग प्लाजे में 12 करोड़ रुपए से जायद मालियत की दुकान भी बताई है। बानी PTI ने 3 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद मालियत का 2 कमरों का फ्लैट भी इस्लामाबाद के प्लाजे में जाहिर किया है। साबिक चेयरमैन PTI ने भक्कर में वरासत में मिली 188 केनाल अराजी भी कागजात में जाहिर की, जबकि 3 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद कैश दस्ती और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 6 करोड़ रुपए से जायद की रकम मौजूद है। 2 लाख रुपए की 4 बकरियां और
तोशा खाना से खरीदी गई कीमती अशिया की कीमत 1,18,77,000 से जायद बताई गई है। बानी पीटीआई ने अहलिया बुशरा बीबी के नाम पाकपतन और दीपालपुर में 698 केनाल अराजी जाहिर की। बुशरा बीबी के नाम बनी गाला में 3 केनाल का घर भी कागजात नामजदगी में बताया गया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने FBR को 2021 में 14 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद असासे जाहिर किए। एक साल के दौरान 2022 में असासों की मालियत बढ़कर 32 करोड़ रुपए से जायद हो गई। FBR सर्टिफिकेट के मुताबिक 2023 में असासों की कुल मालियत 31 करोड़ 59 लाख रुपए जाहिर की गई है। छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर है। रिहाइश के लिए मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चबुर्ची स्टाफ कॉलोनी में मल्टी स्टोरी टावर का संगे बुनियाद रख दिया। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए चौबुर्जी स्टाफ कॉलोनी में मल्टी स्टोरी फॉर अपार्टमेंट्स मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कॉलोनी के लिए नया सेवेज सिस्टम और सिक्योरिटी निज़ाम लाने का भी ऐलान किया। मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने बताया कि 5 मंजिला टावर में ग्रेड 11 से ग्रेड 14 तक मुलाजमीन के लिए रिहाइश गाहें बनाई जाएंगी। टावर के लिए ट्यूबवेल चैम्बर और जनरेटर रूम बनाया जाएगा। खसूसी तौर पर फायर फाइटिंग सिस्टम और अलार्म लगाए जाएंगे। हर टावर में 30 कारों और 40 मोटरसाइकिलों की पार्किंग भी होगी। टावर के हर फ्लोर पर 6 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। मेरी कोशिश होगी विद इन दिस मंथ ये चारों के चारों टावर मेरे ज़हन में तो 4 टावर थे और 6 फ्लोर थे। मैं कल ही इसके ऊपर मीटिंग करके ये इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि ये 6 फ्लोर हों और ये कम से कम 4 टावर तो अभी शुरू हों। इन टावर्स में फायर अलार्म सिस्टम, लिफ्ट्स, जनरेटर्स, वो तमाम बेसिक चीज़ें जो एक अच्छे अपार्टमेंट में होनी चाहिए वो तमाम की तमाम यहाँ पे अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह ताला। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और CCPO समेत मुतल्लिका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वज़ाइफ और इमदादी रकूम के लिए बैतुल माल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि मुस्तहिकीन और ज़रूरतमंदों को बैतुल माल पोर्टल और ऐप के ज़रिए मदद आसानी से मैसर होगी। 32 साल बाद महकमा बैतुल माल जिद्दत की राह पर गामजन। वज़ाइफ और इमदादी रकूम के लिए बैतुल माल के वेब पोर्टल और ऐप का आगाज कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि मुस्तहिकीन और जरूरतमंदों को इमदाद अब आसानी से मुयस्सर होगी। बैतुल माल पोर्टल और ऐप के जरिए मुस्तहिकीन को अदायगी में शफाफियत होगी। पोर्टल और ऐप के क़याम का मकसद मुस्तनद डेटाबेस और पेपरलेस वर्किंग है। इमदाद और स्कॉलरशिप के लिए अब बैतुल माल के पोर्टल या ऐप के जरिए दरखास्त दी जा सके। तिब्बी इलाज और मैरिज ग्रांट के लिए भी इन्हीं के जरिए अप्लाई किया जा सकेगा। इस मौके पर सूबाई वजीर सेहत बैतुल माल डॉक्टर जावेद अकरम का वज़ीर आला को ब्रीफिंग में कहना था कि अस्पतालों में मरीजों को इलाज के लिए बैतुल माल से इमदाद का निजाम भी ऑनलाइन किया जाएगा। दरखास्त दहिंदा के अप्लाई करने पर मुतालिका जिला से तस्दीक के बाद कमेटी कार्रवाई करेगी। दस्तियाब फंड्स की तकसीम के मुताबिक दरखास्त दहिंदा को UBL ओमनी के जरिए अदायगी की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।